Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss from section 57 of the Registration Act 1908. Mr. Abdul Qadir, please turn on your mic and start reading. Section 57 registering officers to allow inspection of certain books and indexes and to given certified copies of entries. Subsection 1 subject to the previous payment of the fees payable in that behalf the book numbers 1 and 2 and the indexes relating to the book number 1 shall be at all time open to inspection by any person applying to inspect the same and subject to the provision of section 62. Copies of entries in such books shall be given to all person applying for such copies. Ji. Book 1 and Book 2. Just 1 second. Book 1 and Book 2. Book 1 is concerned about the non-testimony documents of the immovable property, and Book 2 is relating to the refusal, right? What are the reasons to refuse the same? So ये जो दो हैं, इनको और इनके इंडेक्सेस को जो इससे रिलेटेड है बुक 1 से, वो आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि ये टाइटल, ये डॉक्यूमेंट किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, बट सब्जेक्ट टू द पेमेंट. आपको पहले उसके लिए जो गवर्नमेंट फीस मुतय्यन करेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, एंड आप उन्हें कॉपीज भी दे सकते हैं. सर्टिफाइड टू कॉपी भी आप दे सकते हैं जो बंदा अप्लाई कर रहा है और फीस पे कर रहा है. आप उन्हें मना नहीं कर सकते कि जनाब ये एंट्री जो है ये आपके नाम पे नहीं है, इस वजह से आप इन्हें नहीं ले सकते. बट इट इज ओपन फॉर ऑल जो फी पे करके इंस्पेक्ट करे या कॉपी ले ले. जी जी अब्दुल कदीर. Subject to the same provisions, copies of the entries in book number 3 and in the indexes relating thereto shall be given to the person executing the documents to which such entries relate or to their agents and after the death of the executants, but not before to any person applying for such copies. जी. और बुक 3 में जो रखे जाते हैं वो जस्ट उन्हीं लोगों को जो अप्लाई कर रहे हैं, राइट? जो अप्लाई कर रहे हैं. आई थिंक कि जो सेक्शन बुक 3 है, बुक 3 इज रिलेटिंग टू द डिपॉजिट ऑफ विल एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट. तो वहां पे जो जिन बंदों ने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है वो खुद या फिर उनके एजेंट या ऑथराइज पर्सन वो अप्लाई कर सकते हैं. ये तमाम लोगों के लिए ओपन नहीं होगा. और एग्जीक्यूटेंट के मरने के बाद फिर आफ्टर द डेथ ऑफ एग्जीक्यूटेंट टू एनी पर्सन अप्लाइंग फॉर सच कॉपी. और जो एग्जीक्यूटेंट है जिसने वो विल बनाया, अगर उसके विल पे कोई अगर क्लेम कर रहा है बीइंग अ इंटरेस्टेड पर्सन, तो वो अप्लाई कर सकता है आफ्टर द डेथ ऑफ एग्जीक्यूटेंट, नॉट बिफोर, राइट? जी अब्दुल कदीर. Subsection 3. Subsection 3. Subject to the same provision, copies of the entries in book number 4 and in the index relating thereto shall be given to any person executing or claiming under the documents to which such entries respectively refer or to his agent or representative. बुक 4 में मिसलेनियस बुक इसे हम कहते हैं. सो ये या इसके इंडेक्स के मुताबिक कोई भी बंदा या उसका एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसे क्लेम कर सकता है. जी. Subsection 4. The requestee search under this section for entries in books number 3, numbers 3 and 4 shall be made only by the registering officer. जी. जो सेक्शन बुक 3 एंड 4 है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टरिंग ऑफिसर ही उस एंट्री को दे सकते हैं, राइट? बाकी जो हैं, अगर आप बुक 1 या ऑनवर्ड की अगर बुक 1 2 की बात कर रहे हैं तो वो जो भी इंचार्ज होगा, चाहे वो रजिस्टरिंग ऑफिसर ना भी हो, मगर वो इंचार्ज हो या रजिस्ट्रार हो या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस का रीडर है
या यूं समझ लें कि वो क्लर्क है वगैरह, वो भी ये काम कर सकता है इफ रजिस्टरिंग ऑफिसर उन्हें कंसर्न दे दे, परमिशन दे दे टू डू सो। जी। Subsection 5. All copies given under this section shall be signed Abdul Qadir, we are not getting you. and sealed by the registering officer. And 10. Subsection 5 shall be signed and sealed by the registering officer and shall be admissible for document. Sorry, Abdul Qadir, आपकी आवाज कट कट के आ रही थी. So let me read. All the copies given under this section shall be signed and sealed by the registering officer and shall be admissible for the purpose of proving the contents of original documents. Sorry. तो इनको साइन और सील रजिस्टरिंग ऑफिसर करेगा एंड इसको यूज किया जाएगा फॉर प्रूविंग द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि हमारे बुक में अवेलेबल हैं, और बुक रजिस्ट्रार के ऑफिस में या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पड़ा हुआ है, मगर उसके कंटेंट्स को प्रूफ या डिसप्रूफ करने के लिए हम वो अटेस्टेड कॉपी या ट्रू कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी जो है वो हम पेश करेंगे कोर्ट में या किसी और प्रोसीडिंग में to prove the contents of original one, right? Excuse me, sir. Yes. सर इन बुक्स में अगर आप डिफरेंस बता दें, वो क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, बुक 1 में क्या है? चलें आप रीडिंग कर लें, थोड़ा वापस आ जाएं। सर स्टार्टिंग से। जी जी, बुक कहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन से सेक्शन में बुक की डिस्क्रिप्शन दी गई है? सर यहाँ पे सर आप तो 57 पढ़ा रहे हैं। हम 57 पढ़ा रहे हैं, मगर आप वापस आ जाएं 51 पे। ओके सर। अब्दुल कदीर, जस्ट वेट अ व्हाइल। जी हीरा। सर 51 रीड करूं? जी प्लीज। Section 51, register books to be kept in these several offices. The following books shall be kept in the several offices hereinafter named, namely: A. In all the registration offices. Book 1, register of the non-testamentary documents relating to the immovable property. राइट। Book 2, जस्ट 1 सेकेंड, इसको क्लियर तो कर लें। जो नॉन टेस्टिमेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो बुक 1 में हम कंसीडर करेंगे, वहां पे मेंशन करेंगे। क्लियर? sir, non-testamentary means? Non-testamentary means a document which creates a right for any other person. Sir, means? कि एक ऐसा कागज का टुकड़ा जो आपका हक जनरेट करता है, वो आपका हक वाजे करता है। ये हम सेक्शन 17 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन 17 और 18 में, कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका राइट क्रिएट करे, जनरेट करे, चाहे वो आपका राइट कंडीशनल हो, सब्सिक्वेंट हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो। किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी शेयर हो, मतलब राइट हो उस प्रॉपर्टी में, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके ऑनरशिप को शो कर रहा है मगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो, सो वो नॉन टेस्टिमेटरी डॉक्यूमेंट में फॉल करेगा। ओके सर। जी। बुक 2, रिकॉर्ड ऑफ द रीजंस फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर। जी, ये हमने भी पढ़ा था कि रजिस्टरिंग ऑफिसर हैव राइट टू रिफ्यूज फ्रॉम द रजिस्टरिंग एनी डॉक्यूमेंट, और रीजन क्या क्या थे वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। सो बुक 2 में वो सिर्फ यहाँ पे वो रीजन मेंशन करेगा कि इस वजह से मैं रजिस्टर नहीं कर रहा, आप इसे क्लियर कर लें तो मैं रजिस्टर कर दूंगा। सर बुक 3, रजिस्टर ऑफ द विल्स एंड द अथॉरिटीज टू बी टू अडॉप्ट एंड। जी, रजिस्टर ऑफ विल जो वसीयत है या अथॉरिटीज टू अडॉप्ट, या हमने
किसी अथॉरिटी को अडॉप्ट करने के लिए वसीयत की है किसी ट्रस्ट के हवाले से कि जनाब मेरे मरने के बाद मेरी ये जो प्रॉपर्टी है ये फलां बंदे को दे दें, या मैं ये जो स्कूल चला रहा हूँ मेरे मरने के बाद फलां बंदा जो है उसको इंचार्ज किया जाए इस स्कूल का, या मेरे मरने के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी है वो अब फलां बंदे को दे दें, राइट? जी सर। Book 4, the miscellaneous register हाँ, जो बाकी in the offices. जी, जब इनमें कुछ जी भी सर। नहीं आता तो बाकी सारा हम मिसलेनियस में डाल देंगे। बाकी क्या रह गया? मूवेबल प्रॉपर्टीज स्पेशली। ओके सर। जी। क्लियर सर, थैंक यू सर। एट बुक 5 रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ विल, कि ये वो रजिस्टर है जो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार के ऑफिस में अवेलेबल होगा। यहाँ पे हम अपने विल जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं, वसीयतनामे में जो है हम यहाँ पे लिखते हैं, एंड वी हैव राइट टू विथड्रॉ फ्रॉम इट। सर फिर सर बुक 3 में भी तो विल्स एंड रजिस्टर होती है ना, एंड वहाँ अथॉरिटीज जी, टू अडॉप्ट। वहाँ पे है रजिस्टर ऑफ विल एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट, दो बातें हैं। यहाँ पे हम सिर्फ डिपॉजिट करवाएंगे, विल डिपॉजिट करवाएंगे, और जो बुक 3 है वो हमारे मरने के बाद बुक 3 में इंटेक्ट हो जाएगा, राइट? ओके ओके सर, थैंक यू सर। पहले हम डिपॉजिट करवाएंगे तो उनकी एंट्री जो है वो बुक 5 में मेंशन किए जाएंगे। जब हम मर जाते हैं, हमारे मरने के बाद क्या होगा, वो कंसर्न सब रजिस्ट्रार को भेजे जाएंगे उस डिस्ट्रिक्ट में, उस तहसील में, उस लोकेलिटी में कि जनाब ये विल है, आप इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। तो फिर हम कहेंगे कि रजिस्ट्रार के ऑफिस से हमें ये विल या अथॉरिटी टू अडॉप्ट मिला है, सो ये हम अपने बुक 3 में मेंशन करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। सेक्शन 56 का सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 सेक्शन 57 का ये है, कहाँ गया, just one second, let me read out. Okay, all the copies given under this section shall be signed and sealed by the registering officer, के जो भी आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं फ्रॉम द ऑफिस ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर, सो रजिस्टरिंग ऑफिसर अपने सिग्नेचर और अपने ऑफिस के सील के साथ, मतलब स्टैंप के साथ ठप्पा लगा के देगा और साइन करके देगा, और उसे हम किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे? टू प्रूफ द ओरिजिनल कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल। जनाब यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ओरिजिनल बुक में भी यही कुछ लिखा हुआ है। मैं अटेस्ट करके दे रहा हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट मैं इन बंदों को या इन लोगों को ऑथराइज करके दे रहा हूँ ये वही है जो मेरे ऑफिस में अवेलेबल है, या ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो कुछ भी है वो इसमें अवेलेबल है। इज इट क्लियर? जी अब्दुल कदीर साहब। Section 58. Particulars to be endorsed. Dear, listen, drop it and jump to section 64. Yes, sir. Section 64. जी। Procedure where document relates to land in several sub-districts. Kindly start it. Just one second. Start this with the part special duties of sub registrar, so we can understand that what we are going to study, right? Is it available with your book? Yes, sir. Bilkul. जी। Special duties of sub-registrar, Part Exactly. C, जी। Section 64. Procedure where document relates to land in several sub-districts. जी। Every sub-registrar on the registering a non-testamentary document relating to immovable property not wholly situate in his own sub-district shall make a memorandum thereof. Close your mic. And Close your mic to your mouth, please. जी। माइक अपने मुंह के करीब लेके जाएं, फिर आवाज बोलें।
shall make a memorandum thereof and of the endorsement certificates, if any, thereon, and send the same to every other sub-registrar subordinate to the same registrar as himself in whose sub-district any part of such property is situate, and such sub-registrar shall file the memorandum in his book number 1. जी, अब देखें यहाँ पे ये है कि एक से ज्यादा सब रजिस्ट्रार हैं, मगर सारे सबऑर्डिनेट हैं एक रजिस्ट्रार के। फॉर एग्जांपल, अब सब रजिस्ट्रार है हमारे कश्मीर के, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 5 सब रजिस्ट्रार हैं कश्मीर में, और यहाँ पे एक सब रजिस्ट्रार है उसके जुरिस्डिक्शन में, उसके हुदूद में एक पोर्शन ज़मीन का आ रहा है, तो वो क्या करेगा, एक मेमोरेंडम बनाएगा और उसमें लिखेगा कि जनाब ये ज़मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये रजिस्टर होने आया है, इस इतना पोर्शन जो है वो मेरे जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, बाकी पोर्शन मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा, मगर बीइंग ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 64 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट मेरे पास ये अख्तियारात हैं कि मैं इस ज़मीन को अपने सब रजिस्ट्रार या सब डिवीजन में इसको रजिस्टर करूं, और फिर वो क्या करेगा, ऐसी कॉपी बाकी जितने भी सब रजिस्ट्रार हैं उनको भेजेगा और उन्हें बताएगा कि जनाब मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ, आप लोग इसे रजिस्टर ना करें, और वो उसे अपने बुक 1 में लिखेगा उस मेमोरेंडम को कि जनाब मैंने फलां फलां सब रजिस्ट्रार को ये नोटिस इस डेट इस ऑर्डर नंबर के मुताबिक भेज दी है। क्लियर? ओके जी। Section 65, procedure where document relates to a land in several districts. जी Subsection 1, every sub-registrar on registering a non-testamentary document relating to immovable property situated in more districts than one shall also forward a copy thereof and of the endorsement and certificates, if any, thereon, together with a copy of map or plan, if any, mentioned in subsection 21, to the registrar of every district in which any part of such property is situated, other than the district in which his own sub-district is situated. क्लियर? इसमें बताने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि सब रजिस्ट्रार डिफरेंट थे, डिफरेंट सब रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, अब यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, तो वो ये सबको कॉपी भेजेगा रजिस्ट्रार को, सिवाय अपने रजिस्ट्रार को, क्योंकि उसके लिए इसके पास पावर है, सब रजिस्ट्रार के पास पावर है कि उसके जुरिस्डिक्शन में जो भी जमीन आ रही है तो वो उसे रजिस्टर करे, मगर बाकियों के लिए पावर नहीं है। इस वजह से तमाम रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेगा। पहले सब रजिस्ट्रार को कर रहा था, अब डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, इस वजह से रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेंगे, इंडोर्समेंट देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, मेमोरेंडम लिखेंगे बुक 1 में। जी। Subsection 2, the registrar on receiving the same shall file in his book number 1 the copy of the document and the copy of the map or plan, if any, and shall forward the memorandum of the document to each of the sub-registrar subordinate to him within whose sub-district and any part of such property is situated, and every sub-registrar receiving such memorandum shall file it in his book number 1. जी, अब ये रजिस्ट्रार के पास आ गया, रजिस्ट्रार खुद अपने सबऑर्डिनेट मींस सब रजिस्ट्रार को नोटिस भेजेगा, रिलेटिंग डॉक्यूमेंट्स भेजेगा और ये कॉपीज देगा कि जनाब ये ज़मीन फलां जगह पे रजिस्टर हो रही है। सो वहाँ पे हम मेमोरेंडम रजिस्ट्रार खुद भी लगाएगा और जिसके जुरिस्डिक्शन में ज़मीन आ रही है तो वहाँ पे सब रजिस्ट्रार जो है, हर सब रजिस्ट्रार अपने ऑफिस में बुक नंबर 1 में उसके डिटेल्स या वो मेमोरेंडम मेंशन करेगा। क्लियर? जी, मूव ऑन। D. Special duties of registrar, part D. जी। Section 66, procedure after registration of document relating to land. Subsection 1, on registering any non-testamentary document relating to immovable property, the registrar shall forward a memorandum of such document to each sub-registrar subordinate to himself in whose sub-district any part of the property is situated.
जी, अब रजिस्ट्रार खुद अगर कोई जमीन रजिस्टर कर रहा है तो तमाम सब रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेगा, कॉपी भेजेगा जिनकी जुरिस्डिक्शन में वो जमीन फॉल कर रहा है। Subsection 2. The registrar shall also forward a copy of such document together with a copy of the map or plan, if any, mentioned in subsection 21 to every other registrar in whose district any part of such property is situated. जी, आगे बढ़ें। 3. Subsection 3. Such registrar on receiving any such copy shall file in his book number 1 and shall also send a memorandum of copy of each of the sub-registrars subordinate to him within whose sub-district any part of the property is situated. जी, 4. For every sub-registrar receiving any memorandum under this section shall file it in his book number 1. जी, तो अब यहाँ पे अगर हम इस सेक्शन को देखें तो सब सेक्शन 2 में बता रहा है कि वो कॉपी फॉरवर्ड करेगा अलॉन्ग विथ मेप और एनी अदर टू अदर रजिस्ट्रार, क्योंकि ये रजिस्ट्रार खुद अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके पास भी ये पावर है कि वो अदर रजिस्ट्रार को दे, और जिन रजिस्ट्रार को मिल रहा है वो अपने बुक 1 में मेंशन करेंगे और सेम अपने सब ऑर्डिनेट जो भी सब डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भेजेगा कि भाई आपकी जुरिस्डिक्शन में ये ज़मीन सिचुएट कर रही है, आप भी इसको मेंशन करें। और जो सब रजिस्ट्रार है जिसको मेमोरेंडम मिल रहा है वो भी बुक 1 में मेंशन कर देगा। नो डाउट रजिस्टर एक रजिस्ट्रार के ऑफिस में हो रहा है, मगर बाकी सबको इंटीमेट करना इनकी ड्यूटी में आ रही है। रजिस्ट्रार की ड्यूटी है कि बाकी सबको इंटीमेट करे। जी, सेक्शन 67। Section 67. Procedure after registration under section 30, subsection 2. On any document being registered under section 30, subsection 2, a copy of such document and of the endorsement and the certificate thereon shall be forwarded to every registrar within whose district any part of the property to which the instrument relates to situate, and the registrar receiving such copy shall follow the procedure prescribed for him in section 66 subsection 1. जी, तो सेक्शन 30 में यहाँ पे ये है कि रजिस्ट्रार अपनी मर्जी के मुताबिक अगर कोई डॉक्यूमेंट अपनी डिस्क्रिप्शन पे, वैसे वो सब रजिस्ट्रार के पास पावर है, मगर वो खुद अगर रजिस्टर करना चाह रहा है तो वो उसको अपने ऑफिस में रजिस्टर करेगा और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स बाकी रजिस्ट्रार जिनके डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है उनको भी भेजेगा, राइट। और रजिस्ट्रार जो है वो वही काम करेंगे जो 66 में मेंशन है। क्लियर? जी अब्दुल कदीर, come on, complete this portion. Mr. Abdul Qadir. Abdul Qadir, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Present. We are not getting you. Please speak up. Present, sir. Present. Closer your mic to your mouth. Your voice is not clear. Yes, sir. Available. जी जी, रीडिंग करें, स्टार्ट रीडिंग। Part E. जी, Of the controlling power. we are not getting your voice, please. अच्छा, किसी और के पास अगर बुक अवेलेबल है तो वो काइंडली रीड आउट कर लें। Sir, may I? Yes, please. E. Of the controlling powers of Registrar and Inspector General. Power of Registrar to superintend and control Sub-Registrar. Every Sub-Registrar shall perform the duties of his office
under the superintendent and control of the registrar in whose district the office of such sub-registrar is situate. जी 2 पढ़ लें. Okay. Every registrar shall have authority to issue, whether on complaint or otherwise, any order consistent with this act which he consider necessary in respect of any act or omission of any sub-registrar subordinate to him, or in respect of the rectification of any error regarding the book or the office in which any document has been registered. जी अब now if we look at the section 68, this speaks about the powers of registrar, right? अब power of registrar पहले हमने क्या पढ़े थे? Special duties. Now we are discussing the powers. इसकी जो सबसे पहले स्पेशल पावर है कि वो तमाम सब रजिस्ट्रार को सबॉर्डिनेट, जो इसके सबॉर्डिनेट हैं उनको सुप्रीडेंट करे, लुक आफ्टर करे कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, और जो भी उसके सब डिस्ट्रिक्ट में फॉल कर रहे हैं, उसके डिस्ट्रिक्ट में जो भी सब रजिस्ट्रार फॉल कर रहे हैं उन सबको ये करे. और रजिस्ट्रार के पास ये भी अथॉरिटी होगी कि वो कोई भी ऑर्डर इशू कर सकते हैं फॉर एनी एक्ट और ओमिशन. ठीक, किसको? अपने सब रजिस्ट्रार को. और कौन सा एक्ट और कौन सा ओमिशन? जो इस एक्ट के या इस लॉ के खिलाफ हो, इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट, रिलेटिंग टू एनी, या किसी कोई एरर हो गया हो, ठीक, या बुक के हवाले से हो, एरर हो गया हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के हवाले से. इन शॉर्ट के the registrar has power to control the sub registrars. कौन कौन से सब रजिस्ट्रार? जो इनके सब डिस्ट्रिक्ट में, सब इसके डिस्ट्रिक्ट में फॉल कर रहे हैं, मीन सब डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है. जी सेक्शन 69. एदा. 69. Power of Inspector General to superintend registration officer and make rules. The Yes. Inspector General shall exercise a general superintendence over all the registration offices in the territories under the government, and shall power of from time to time make rules consistent with the act. Yes. A. के Providing for the safe custody. Sorry. जी यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल जो है वो इन तमाम लोगों के ऊपर सुप्रीडेंट है, और इसका काम है कि उनको लुक आफ्टर करे, और जो जुरिस्डिक्शन, जो लिमिट, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इंस्पेक्टर जनरल को गवर्नमेंट ने दी होगी, सो वो इसके पास पावर होंगे कि वो इन सबको कंट्रोल करे और रूल बना सकता है, रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट. और वो रूल्स कौन को किस किस हवाले से हो सकते हैं? जी एदा, प्लीज रीड आउट. A. Providing for the safe custody of books, papers, and documents. राइट, इनको बताने B. की जरूरत नहीं. Declaring हम्म, declaring what languages shall be deemed be commonly used in each district. राइट. C. Declaring what territories division shall be recognized under section 21. अब सेक्शन 21 में क्या है? मैप या कोई चार्ट या मैप वो बनाते हैं आप सेक्शन 21 में. जी. D. Regulating the amount of fines imposed under section 25 and 34 officers by section 63. जी आगे चलें. E. Regulating the exercise of discretion reposed in the registering officer by section 63. जी आगे चलें. F. Regulating the form in which registering officer are to make memorandum of documents. जी. G. Regulating the authentication by registrar and sub-registrar of the books kept in the respective officers under section 51. राइट. Move on. Okay. H. Declaring the particulars to be continued in indexes number 1, 2, 3, and 4 respectively. Yes. I. Declaring the holidays that shall be observed in the registration officers. Yes. J.
generally regulating the proceeding of the registrar and sub-registrar. राइट अब The यहाँ पे rules were made shall be submitted to government for rule- approval. after they have approved, they shall be published in the official gazette and on publication shall have effect as it's enacted in the act. जी अब यहाँ पे क्या है कि ए से लेकर जे तक कुछ पावर्स हैं, ये बता दिए गए कि इस हवाले से फॉर सेफ कस्टडी ऑफ द बुक्स एंड पेपर डॉक्यूमेंट्स, लैंग्वेज कौन सा यूज होना है, टेरिटोरियल डिवीजन कौन से होने हैं, और इम्पोज ऑफ द फाइन वो कैसे कैसे लगाने हैं, राइट, और इंडेक्सेस कौन कौन से होने चाहिए, बुक रजिस्ट्रार कौन से रखेगा, सब रजिस्ट्रार कौन कौन से बुक्स रखेगा, हॉलीडेज क्या होंगे, और बाकी जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो, और ये रूल जैसे ही बनेंगे वो गवर्नमेंट के पास भेजे जाएंगे अप्रूवल के लिए। अप्रूवल होने के बाद ऑफिशियल गजेट में होंगे, ऑफिशियल गजेट ने होने के बाद फिर इनका ऐसे ही हैसियत होगा जैसे इस एक्ट का है, इस लॉ का है, राइट।